Hello, good morning student. Today we will discuss the topic velocity and acceleration under the chapter 8 motion. First we discuss what is velocity. In previous class we discussed what is speed. The speed is the distance travelled by the object per unit time, and speed is equal to distance upon time. Here velocity it is defined as the distance travelled by the object per unit time in a given direction. What is the difference between the definition of speed and velocity? The velocity is specified that the distance traveled must be in a given direction, but in speed it is not given. That's why velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. It is also defined as the displacement of the object per unit time. If we have written here displacement itself a vector quantity, therefore in the definition of velocity, if we define the velocity as the displacement per unit time, then it is also a vector quantity. It gives the direction as well as magnitude. So, according to the definition, the formula of velocity is equal to displacement upon time, or distance traveled in a given direction divided by time. This is the formula of velocity. Now velocity and speed may be equal, may not be equal in magnitude, in which case the speed and velocity both are equal in magnitude. तो एक सिचुएशन बनाते हैं, a man travels 100 meter in 50 seconds, and this is from A to B. Okay, so what is the distance traveled? Distance is equal to speed is equal to, what is the speed? Speed is equal to distance upon
time, and here 100 upon 50, it means 2 meter per second. Okay. Now we calculate the velocity. Velocity is equal to displacement upon time. What is the displacement? Displacement, if a man travels from A to B in a straight line, then displacement is also 100 meter from A to B. Therefore, velocity is displacement upon time, and here displacement is 100 meter upon time is 50 seconds. This is also 2 meter per second, but it has a direction from A to B. So magnitude is the 2 meter per second. Magnitude of speed, to be speed on is a scalar quantity. That's why speed is equal to 2 meter per second. But velocity is a vector quantity. Its magnitude is 2 meter per second, but that it has direction from A to B. So in both the cases, magnitude of velocity and speed ये दोनों सेम है. तो कब वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है. ठीक है. अब हम देखेंगे कब डिफरेंट रहता है. देखिए ये दिस इज पॉइंट ए. अगेन एक आदमी चलना शुरू किया ए से बी की तरफ. ठीक है. ये 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन 50 सेकेंड. इन 50 सेकेंड. ठीक है. अगेन ये रिटर्न हो जा रहा है फ्रॉम बी टू ए इन टाइम 50 सेकेंड. When it returns from B to A, the distance travel is also 100 meter. समझ में आ रहा है? यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, रिटर्न हो रहा है. तो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड. ठीक है. एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 100 प्लस 100 इट इज 200 मीटर, एंड टोटल टाइम फ्रॉम A to B takes 50 seconds, and from B to A it also takes again 50 seconds. Then total time is 100 seconds, and this is equal to 2 meter per second. Okay, this is the average speed. ठीक है. फॉर द इंटायर जर्नी. नाउ वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करें. वेलोसिटी दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन? If it goes from A to B and again return back to A, therefore its initially it is at A and finally also he is at B. Therefore total displacement will be 0. So in this case displacement is 0 upon 100 second, and this is equal to 0. Now in this situation, a man changes its direction, then the magnitude of speed is 2 meter per second, and that of velocity is 0. It means in certain cases the magnitude of speed and velocity is not same. In certain case it is same. Okay, पिछले एग्जाम्पल में दिखाया हमने
कि यहाँ सेम हो रहा है और अभी क्या देखा, डिफरेंट भी है। समझ में आ गया? तो वेलोसिटी चेंज कब होता है ये हम लोग देखना है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन वेलोसिटी चेंजेस कैसे होता है? वेलोसिटी चेंजेस नंबर 1 बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड, and second by change in direction। अब यहां देखना है कि वेलोसिटी चेंज अगर होता है तो मैग्नीट्यूड में अगर चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज है, अगर डायरेक्शन में चेंज हो तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। फिर भी अगर दोनों बदल रहा है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, तब तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। तो इन दोनों में से किसी एक में भी चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज होगा। मैग्नीट्यूड में चेंज होना वेलोसिटी का मतलब है कि कोई कार है, स्ट्रेट रोड पर जा रहा है, 40 किलोमीटर का पर आवर का स्पीड है, स्ट्रेट जा रहा है और वो उसका स्पीड इंक्रीज हो गया 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जा तो वो स्ट्रेट लाइन में रहा, स्ट्रेट जा रहा, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। समझ में आ गया? अब अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। ये ऐसा कौन सा सिचुएशन है? डायरेक्शन चेंज होना मतलब जैसे कोई कार कर्व ट्रैक पर, रोड पर सेम मैग्नीट्यूड से टर्न ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखिए सिचुएशन है कि ये रोड है और कोई कार विद द सेम वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कार कर्व पाथ पर ट्रेवल कर रहा है। तो ये सर्कुलर पाथ है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ कार चेंज होगा। आप जानते हैं दिस इज वी सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट डिफरेंट पॉइंट मान लो ले लिया, अगर कोई इस तरह से मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट विल बी द टेंजेंट। यहाँ पर क्या डायरेक्शन होगा, दिस, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा। तो यानी कर्व पाथ पर हमेशा डायरेक्शन में चेंज होता है। तो ये भी कर्व पाथ में अगर कोई कार कर्व रोड पर विथ कांस्टेंट स्पीड इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ये ट्रेवल कर रहा है, तो कर्व पाथ है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, पर direction changes continuously, it means its velocity is changing। समझ में आया? ये वेलोसिटी इसका बदल रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहा। समझ में आया? अब कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखें हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपने कुछ डिफरेंसेस देखा था प्रीवियस वीडियो में, इस बार आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया होगा, हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द स्पीड, ठीक है, या फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
and here velocity is equal to displacement upon divided by time, ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप समझते हैं, इट इज एक्सप्लेन बाय ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे फिर हम एक बार बता दें कि कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, इतना हमने कहा दैट इज स्पीड। हमने कोई डायरेक्शन नहीं बताया किधर जा रहा है उधर। लेकिन अगर यही बात हम कहें कि कार 40 किलोमीटर के स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, तो हमने डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया विथ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये कंबाइंड होकर के क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होना चाहिए। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसमें क्या लिखेंगे? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तुमने थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने देखा कि स्पीड कैनॉट बी जीरो और नेगेटिव। समझ में आया? स्पीड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, यानी ये हमेशा पॉजिटिव हो। अगर स्पीड नहीं है तब तो स्पीड ही नहीं है, अगर स्पीड है तो जीरो नहीं है। अगर जीरो स्पीड है तो स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब रेस्ट है। तो स्पीड अगर है तो इट कैनॉट बी जीरो, अगर जीरो है तो स्पीड ही नहीं है तो रेस्ट में है, और नेगेटिव नहीं होगा। जबकि वेलोसिटी may be positive, negative और जीरो। सुनिए, ये बेसिक 3 डिफरेंसेस हैं जिसको हमें याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो आप सॉल्व करेंगे, और उसका मोबाइल से फोटो लेकर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ठीक है? क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए जो हम आपने पढ़ा उसी पर है। व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन है इन विच केस magnitude of speed and velocity are same and different. Explain with example. Explain with example. ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, वो है एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन कब होगा ये हम जानना चाहेंगे
जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी दो तरह का होगा, तो वेलोसिटी जो है वो दो तरह का होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। और दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कोई ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इन गिवन डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is same in equal interval of time, then it is called uniform or constant velocity. When the displacement of the body is different in equal interval of time, then it is non-uniform velocity. When velocity is non-uniform, so we have to find the average velocity, and average velocity is equal to initial velocity plus final velocity by 2। ये तो वेलोसिटी की बात है, लेकिन एक्सेलरेशन तब होगा when there is non-uniform velocity, यानी चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है, यानी कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्ट्रेट जा रहा है, अब उसका स्पीड धीरे धीरे 41, 42, 45, 60 ऐसा बढ़ रहा है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन होता है, यानी अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, तो इट मीन्स इट हैज एन एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is the rate of, it is the rate of change in velocity, यानी acceleration is equal to change in velocity upon time। Change in velocity upon time. If u is the initial velocity and v is the final velocity, then a is equal to v minus u upon t, where u is equal to initial velocity and v is equal to final velocity. तो a is equal to v minus u upon t, change in velocity upon time। चेंज इन वेलोसिटी जब होगा तभी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन तभी होगा जब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज called acceleration, and acceleration is equal to v minus u upon t, where u is the initial velocity, v is the final velocity। then एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि a car, the velocity of the car, the velocity of car increases from 10 meter per second to 30 meter per second
in 5 seconds. What is acceleration? What is acceleration? तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो रहा है. इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर per second and time for that change is 5 seconds. So A is equal to V minus U upon T and V is 30 minus 10 upon 5 is equal to 20 upon 5 or you can say 4 meter per second square. ठीक है? ओके. नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और फिर ग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है? ओके.